Hi everyone, and in this video we'll talk about one of the important thing, that is product requirement document. Uh, तो product requirement document actually होता क्या? First of all, we try to understand that and what is the importance of this document in a team which works in agile fashion. So product requirement document एक ऐसा document होता है जहाँ पे a product manager basically writes what is the purpose of building a particular capability or a particular feature on our product, right? So इसमें क्या होता है कि इसमें पूरी डिटेलिंग होती है. You have the complete detailing about for which kind of user we are creating it, what are the different themes we'll be working on, how exactly we are going to execute it, a high level architecture, how exactly we are going to achieve it. तो इसमें कुछ कुछ चीज़ें आइटम जो जैसे आर्किटेक्चर लेवल का डायग्राम है, ठीक है. मे बी समटाइम्स प्रोडक्ट मैनेजर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू डू दैट. So PM needs to work with an architect to get those things drafted, right? फिर उसमें फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है. उसमें सक्सेस मैट्रिक्स होता है जिसमें वो एक्चुअली वो इसलिए होता है कि मान लीजिए आपने कोई कैपेबिलिटी बनाया, बट हाउ एग्जैक्टली नो यू गोना मेजर इट वेदर इफ इट इज़ अ सक्सेस और नॉट, राइट. फिर उसमें अगर आपका कोई रिस्क है, यू हाईलाइट दैट. इफ देयर इज रिस्क, हाउ यू गोना टैकल इट. सो it's an exhaustive document which has a lot of things written specifically to a particular feature or capability, and which you can say it's a kind of a single a source of consumption for different stakeholders if they want to understand what exactly the why, how, right, and what. So what, why, and how is something covers under the PRD, right? So मैंने क्या किया, मैंने भी एक PRD बनाया था. This is basically a case, hypothetical case, जिसमें मान लीजिए आप लिंक्डइन पे, ठीक है, लिंक्डइन पे यू हैव मल्टीपल विजिटर्स, राइट, who might be visiting a particular profile, right? But if someone wants to know, right, if any visitor visits a particular profile of, let's say, of my profile, I would like to know what exactly made him interested, what exactly इंटरेस्ट, व्हाट आई वुड से कि मेरे प्रोफाइल में उसको क्या चीज़ इंटरेस्टिंग लगा, राइट. एंड एट द सेम टाइम लाइक वेदर ही हैज़ एक्चुअली saw my resume, or what exactly he did, right? Did he download the resume? Just think about, let's say, if an HR visits my profile, right? So अभी के समय में क्या होता है कि मुझे नहीं पता चलता कि मेरा प्रोफाइल में उन्होंने किया क्या, राइट, कि जो विजिटर्स है मेरे प्रोफाइल पे वो एक्चुअली मेरे प्रोफाइल पे आके कर क्या रहे हैं, राइट. एंड व्हाट आर द एरियाज और व्हाट आर द थिंग्स विच they are more interested, or where they are actually spending a more amount of time while they are on my profile. तो उसी को मैंने समझते हुए मैंने वो केस स्टडी लिया, एक हाइपोथेटिकल, एंड देन आई क्रिएटेड पीआरडी. तो सबसे पहले क्या होता है कि पीआरडी में आप एक ऑब्जेक्टिव लिखते हैं विच बेसिकली समराइजेज व्हाट, राइट, व्हाट एग्जैक्टली यू आर गोना अचीव विद दैट, ओके. फिर दूसरा चीज़ क्या होता है इसमें, यूज़र सेगमेंट्स, राइट. नाउ आपके प्रोफाइल पे बहुत सारे यूज़र सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है, नॉट प्रोफाइल, आई वुड से आपके प्रोडक्ट पे बहुत सारे यूज़र्स होते हैं, राइट. एंड देन यू ट्राई टू सेगमेंट इट कि अच्छा कौन कौन से ऐसे यूज़र सेगमेंट्स है विच माइट बी इंटरेस्टेड, और विट कुड बी फॉर हुम इट कुड बी अ वैल्यूएबल फीचर और कैपेबिलिटी. तो जैसे कि एक हो गया, मान लीजिए कि जॉब सीकर है या कोई करियर चेंजर्स है, राइट, लाइक समवन इज लाइक टू स्विच हिज जॉब, राइट. तो उनके लिए दिस कुड बी समथिंग विच कुड बी फ्रूटफुल. फिर यू डिस्क्राइब अबाउट दैट पर्टिकुलर प्रोफाइल, यू विल जस्ट मेंशन व्हाट आर द नीड्स, you take a particular hypothetical user persona, you just name it, age, location, you can mention, give a nice understanding of a user, right, for which you are considering as a user segment, and then write it down, what are their goals, what are the major pain points, right. And so once you have that, then you can go ahead and you can start thinking about like epics, right. You can start thinking about the themes, right. Okay, so now what exactly an epic,
सो एपिक जो होता है वो एक एट अ हाई लेवल इट बेसिकली says or gives a theme like what exactly what exactly you will be doing, right? But when you but no, if you accumulate it everything, or if you bring all the epics together, that will gonna fulfill the end to end feature capability, right? तो जैसे यहाँ पे क्या किया मैंने एपिक्स डिस्क्राइब किया कि ओके रिज्यूमे डाउनलोड नोटिफिकेशन है एक एपिक, एक थीम है जी के। दूसरा एक विजिटर इंटरेस्ट इंसाइट्स, जिसमें पता चले कि विजिटर्स ने कौन से सेक्शन में मेरे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, राइट? देन एक डैशबोर्ड जो कि अगर मान लीजिए आपके प्रोफाइल पे 1000 विजिट्स होते हैं या 100 विजिट्स होते हैं, तो एट अ डैशबोर्ड एट एनालिटिक्स लेवल और हाई लेवल आई कुड एबल टू अंडरस्टैंड कि वो एक्चुअली चल क्या रहा है, राइट? Then there could be something related to the privacy and security controls. अगर if you want end users to कि अगर वो if they really want, if they want it, or if they want they can even deactivate that particular capability. फिर वैसे ही होता है एक डेटा एनालिटिक्स एंड फीडबैक लूप, एक मैंने एपिक बना लिया। तो you can see that there are different epics which I have created, and if you cover all the epics theme, it will cover the end-to-end functionality of that particular capability which I am trying to build there, or the problem which I'm trying to solve. Now when you're writing an epic, उसके बाद you need to even give the description कि वो actually epic है क्या, ठीक है? What are the different user stories? So user stories basically gives the different stakeholders to understand what exactly the end user would be getting or achieving with these capability, right? So and if you see, I will tell like as a LinkedIn user. So this is with respect to the user ends, right? So ये मैं ये नहीं लिख रहा कि as a product manager, वो नहीं. When you're writing a user story, that basically signifies what exactly a particular user segment you're talking about, what is the objective, right? And why exactly he needs that, right? And what is the outcome, or what exactly he would try to achieve it, right? So that's how we write the user stories. And for every epic, we need to write the user stories that are, but you just need to keep in mind, see, most of the user stories are into the functional requirement, right? And it's not very technical. तो ये user stories हो गई आपकी। फिर उसके बाद आता है कि functional requirements, right? कि अब जो आप capability बना रहे हो, जो आप product बना रहे हो, उसके क्या क्या requirements functionally है, मतलब what are the different things or what are the different flows that would be needed in order to achieve that particular capability which as a product manager you are trying to build, right? तो जैसे एक functional requirements में क्या हो गया, resume download notification, interest insights, user interface design, ठीक है? तो ये चीज़ हमें product में चाहिए, और these are kind of a functional capabilities which we need on the product, right? non functional requirements मतलब कि वो गए जो कि it basically which basically it won't be directly consumed by your end user, but it will be more of a back-end work, or I would say it's more of development oriented theme or requirement, जहाँ पे आप ये लिखिएगा कि अच्छा ये जो कैपेबिलिटी बना रहे हैं दिस शुड बी सिक्योर, राइट? दिस शुड बी एफिशिएंट इनफ। अगर मान लीजिए कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं आपके प्रोफाइल पे, ठीक है, तो दिस फीचर शुड वर्क स्मूथली। फिर यहाँ पे प्राइवेसी कंप्लायंस का इश्यूज अगर नहीं आना चाहिए, ठीक है? तो ये सब नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स हो गए। फिर आपका हो गया सक्सेस मैट्रिक्स। तो सक्सेस मैट्रिक्स में क्या हो गया कि आपने कैपेबिलिटी बनाई, ठीक है? नाउ यू नीड टू गैदर द डेटा इन ऑर्डर टू कम अप टू अ पर्टिकुलर conclusion that okay you have spent 2 months or 3 months or 1 month, whatever may be the time period, right? So जो आपने डेवलपमेंट एफर्ट डाला है उसका क्या रियली एंड यूजर्स को कुछ आउटकम मिल रहा है, ठीक है? तो सक्सेस मैट्रिक्स क्या होगी, जैसे कि इंगेजमेंट रेट हो गया, ठीक है, डाउनलोड नोटिफिकेशन इफेक्टिवनेस हो गया, प्रोफाइल इंप्रूवमेंट रेट हो गया। तो ये बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट विच यू आर ट्राइंग टू सॉल्व, ठीक है? तो अगर ये चीज़ हमारी बढ़ रही है, राइट, इफ़ दीज थिंग्स आर राइजिंग, देन इट मीन्स दैट कि ये जो कैपेबिलिटी है उसका यूजेज है, पीपल आर रियली लाइकिंग इट, इट इज़ रियली गेटिंग अडॉप्टेड बाय द एंड यूजर्स, एंड द आउटकम, राइट, एंड द आउटकम विच यू ट्राइंग टू अचीव हेयर इज मेट, राइट?
फिर होता है आपका यूज़र फ्लो. यूज़र फ्लो इज़ बेसिकली गिव्स अ विजुअलाइजेशन कि ओके कि अगर यूज़र को वो पर्टिकुलर कैपेबिलिटी दिखता है तो उसका एंड टू एंड फ्लो क्या होगा, वो यूज़र कैसे कैसे कहाँ पे क्या क्लिक करेगा, उसको वो पर्टिकुलर फीचर कहाँ पे दिखेगा, राइट. एंड हाउ एग्जैक्टली ही इज़ गोइंग टू ट्रैवल फ्रॉम डिस्कवरी ऑफ दैट पर्टिकुलर capability till the final execution or till the final thing which you would like your end user to execute. Okay. फिर इसके बाद क्या आपको एक्सप्लेन करना है कि वो यूज़र फ्लो है वो कैसे कैसे काम करेगा, वो जो आपने जो फ्लोज बनाए हैं उसका मतलब क्या है, वो मतलब इट विल गिव अ फील टू द डेवलपर्स एंड टू अदर स्टेक होल्डर्स कि भाई ये यूज़र फ्लो जो लिखा है हमने वो एक्चुअली है क्या, एंड व्हाट एग्जैक्टली ऑल व्हाट ऑल थिंग्स इज गोइंग इनटू ईच ऑफ द फ्लोज, राइट. ये हो गया. फिर आप एक क्या करते हैं कि यू क्रिएट अ लो फिडिलिटी वायर फ्रेम, राइट. आप एक लो फिडिलिटी वायर फ्रेम बनाते हो ताकि एक यू कैन इवन यूटिलाइज इट काइंड ऑफ अ पेन एंड पेपर, क्रिएट अ स्केच डायग्राम. तो वो एक क्या होता है कि एक विजुअलाइजेशन मिल जाता है बाकी स्टेक होल्डर्स को. समटाइम्स क्या होता है कि मान लो कि आप कुछ इन्विजन कर रहे हो बट इफ यू आर नॉट क्रिएटेड दिस बेसिक विजुअलाइजेशन ऑफ योर ऑफ वॉट एवर यू आर थिंकिंग, तो क्या होता है कि बाकी स्टेक होल्डर्स माइट नॉट और दे मे थिंक समथिंग डिफरेंट, राइट. सो जब आप विजुअलाइजेशन क्रिएट करते हो उस चीज़ का तो लॉट ऑफ थिंग्स गेट क्लियर, राइट. एंड इवन यू कैन और इवन द अदर स्टेक होल्डर्स वुड बी एबल टू गेट द फील ऑफ इट, राइट, कि ओके करना क्या चाह रहे हैं हम लोग इस पर. तो जैसे मैंने बनाया अभी यहाँ पे 3 स्क्रीन्स बना दी कि अच्छा ठीक है ये बेसिक सा एक प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है. आई जस्ट मेड इट फॉर एक्सप्लेनिंग और शेयरिंग इट विद ऑल ऑफ यू. तो यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट स्क्रीन है जिसमें ओके अगर यूज़र अपनी प्रोफाइल पे जाता है तो वहाँ पे उसको एक विजिटर इनसाइट्स दिखना चाहिए एनालिटिक्स सेक्शन के अंदर, अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स जो अभी है एग्जिस्टिंग. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर शुड बी एन एड ऑन कॉल्ड एज विजिटर इनसाइट्स. नाउ अगर वो यूज़र जो है उस विजिटर इनसाइट्स पे क्लिक करता है तो फिर देन इट विल फर्दर ड्रिल डाउन एंड गिव मोर इनसाइट्स, राइट, अबाउट दैट पर्टिकुलर विजिटर इनसाइट्स टैब कि अच्छा भाई कि इंटरेस्ट एरिया ट्रेंड क्या है, जो विजिटर्स आ रहे हैं उसमें से कितने HR हैं, कितने मतलब किस इंडस्ट्री से आ रहे हैं मेरे प्रोफाइल पे विजिट्स, ठीक है, उन्होंने कौन से सेक्शंस को ज़्यादा विजिट किया, राइट, व्हाट एग्जैक्टली मेक देम मोर इंटरेस्टेड, क्या मेरे प्रोफाइल पे क्या क्या एक्शन आइटम्स हुए, राइट. ओके किसी ने मेरे प्रोफाइल का रिज्यूमे डाउनलोड किया या किसी ने प्रोफाइल पे सिर्फ क्लिक किया, रिज्यूमे पे क्लिक किया, राइट, किसी ने मेरा कॉन्टैक्ट देखा, तो वो दोज इनसाइट्स कैन बी गेटन नाउ. और फिर फाइनल क्या है कि जो भी कैपेबिलिटीज होता है उसका फीडबैक लेना ज़रूरी होता है. नाउ जो फीडबैक है दैट कुड बी इवन टेकन फ्रॉम, इट कुड बी टेलीमेट्री डेटा or it could be something taken it from user group sessions, or whenever a client or whenever a product manager meets to the consumers, right, in a user group sessions. तो यहाँ पे क्या है कि ये जो है ये इन ऐप फीडबैक एंड फीचर रिक्वेस्ट है जहाँ पे यूजर्स जो हैं वो अपना फीडबैक दे सकते हैं about this particular capability, right. So this is what I wanted to discuss about PRD, product requirement document, and you'll see how exhaustive it is, and it takes a good amount of time in order to think each and everything, and also to collaborate with other stakeholders, right. You connect with architects, you connect with engineering team, you also connect with sales team, right. So you connect with multiple teams, and that's how you create a product requirement document. So but yeah, this is an evolving document. It's not like once you have made it, it won't change. It will definitely, most of the time it changes, it evolves a lot, right. So in this video I wanted to talk about this, and I hope this video created a kind of a value, or you would have derived some value out of this. And if you like this video, just go ahead and hit like button. And if you like, and if you want, I would also urge everyone to just go ahead and subscribe my channel, and do share with your friends if they are also preparing for product management or they are aspiring for this particular role. So till then, take care and bye.